Welcome to Python functions. So we will see what is function. We are going to see what is a def, parameters, arguments, and return and args, star args. Okay, we will see this all. And today we will learn how to write a code once and use it whenever we need it. Suppose if we write a code and we will call that function. Whenever we call that function, it execute that code. Suppose here you return a function, right? This function execute something, okay? Then running multiple times the code is the logic. इसमें function में क्या है, यहाँ पर एक कोड लिख दिया, उसको वन टाइम कॉल करो, टू टाइम्स कॉल करो, मल्टीपल टाइम्स कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, सो Python functions. So here I will give you an example. Okay, suppose we are writing a function to display the percentage, right? So percentage अगर आपको कैलकुलेट करना है, परसेंटेज नाम का एक फंक्शन लिखा है आपने यहाँ पर. सो इनपुट रहेगा वन स्टूडेंट और आउटपुट रहेगा उसका परसेंटेज. ओके, सो यहाँ पर आप इसको रन करोगे एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं. कोड लिखा है आपने, सिंपल कोड लिखा है विच एग्जीक्यूट विच कैलकुलेट मार्क्स एंड डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स इट इवेल्युएट्स परसेंटेज. एक स्टूडेंट के लिए आप रन करोगे, दो स्टूडेंट है तो दो बार रन करोगे, थ्री स्टूडेंट है तो थ्री बार, थ्री टाइम्स, 50 स्टूडेंट्स है तो आपको 50 टाइम्स ये कोड रन करना पड़ेगा. सो बेटर वे कि इस कोड को एक फंक्शन में आप लिखो, इस फंक्शन में एक बार लिख दो और इसको 50 टाइम्स कॉल करना बेटर रहेगा. तो यही कंसेप्ट है फंक्शंस का. तो मैं बताता हूँ आपको. हैव यू एवर विश्ड यू कुड राइट पीस ऑफ कोड वंस एंड रीयूज, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, रीयूज इट एज मेनी टाइम्स as you want without typing it again and again. This is exactly what a function lets you do. Today's goal is simple. By end of this session you will understand what a function is, why we need it, and how to create and use your own functions in Python using easy रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजिंग टेक्निकल jargon. ओके, रियल लाइफ के हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे. सो ओके, सो especially this session is for what absolute beginners to the functions. If you are fresher, if you are working professional, if you are learning first time functions, yeah. No, if you are non-technical, okay, no problem. So you will learn what is function, why do we need functions, built-in function, user-defined functions, okay, how to call a function, function with parameters, without parameters, the return statement, difference between print, return, these all things we will see. So in simple words, what is a function? A function is a named block of code that performs a specific task. You package a set of instructions once, give it a name, and then you can use that package whenever you need it just by calling its name, right? मतलब क्या होता है कि think of a function like a machine, right? Machine. This is like a machine which takes some input. Machine क्या करता है? Which takes input and gives output, some specific output. You give it some input, raw material, it performs task. Processing means here it will process. It may give you an output, finished product. Yes, this is what function. Example is coffee machine. You put water plus coffee beans as an input. The machine brews it. Task. You get a cup of coffee. That coffee is output. You don't need to know how it brews. You just use the machine. ATM example. You insert card and enter an amount. Entering amount is input. The ATM checks your balance and processes the request, that is task. It gives you cash, that is output. Means machine which takes input, which processes some task and which will generate output. So here machine is nothing but your function. Okay, so हम लोग इसको देखेंगे अभी. A Python function works exactly the same way. Remember this, a function is nothing but input, process, output. Output is optional. Sometimes function just do something like printing a message. Why do we need functions? मैंने जैसे अभी बताया था कि एक फंक्शन मतलब एक कोड लिखना है आपको. वो कोड क्या करेगा, एक कोड लिखना है
it takes marks and it processes, that means calculate the percentage, and it will give you percentage, means this is your percentage. So एक स्टूडेंट के लिए यस रिया, वन टाइम यू कैन कैलकुलेट, यू कैन रन इट वन टाइम, मतलब आ जाएगा। सेकंड टाइम यस अमन के लिए ये कोड रन होगा, फिर सारा के लिए रन होगा। बट टुमारो इफ यू हैव 500 स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 500 टाइम्स ये कोड रन करना पड़ेगा। सो बेटर वे, ये कोड को आप फंक्शन में पुट करो। यू पुट दिस कोड इनसाइड द फंक्शन बाय यूजिंग फंक्शन नेम, यहाँ पर नेम रहेगा, एंड यू कॉल इट 500 टाइम्स। वो इजी रहेगा, 500 टाइम्स रन करना इजी नहीं है, 500 टाइम्स उसको कॉल करना इजी रहेगा। सपोज हियर you see, without a function repeating the same logic and again, print hello Ria, welcome to the Python class. Print hello Aman, welcome to the Python class. Print hello Sarah, welcome to the Python class. ओके, और मैं यहाँ पर कुछ और लिखना चाहता हूँ। यहाँ पर मतलब मेरे पास अगर 50 स्टूडेंट्स है तो क्या करूँ मैं, 50 स्टूडेंट्स के लिए लिखूँ क्या, ऐसा हर एक का नाम और हेलो उसका नाम, वेलकम टू द पाइथन क्लास। मतलब मेरा इसमें फिक्स क्या है, इसमें फिक्स मेरा हेलो फिक्स है, वेलकम टू द पाइथन क्लास फिक्स है। ये कोड मेरा रिपीटेटिव है, दिस कोड इज रिपीटेटिव। सिर्फ यहाँ पर ना चेंज हो रहा है क्या, रिया अमन सारा, रिया अमन सारा, मतलब जो भी है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कुछ प्रदीप, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ विशाल, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ स्नेहल, राइट। सो हियर आई एम राइटिंग that message inside print and saying hello name। so मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो ये मतलब हेलो रिया वेलकम टू द पाइथन क्लास, हेलो एमन वेलकम टू द पाइथन क्लास, हेलो सारा वेलकम टू द, ये सब आ रहा है। मतलब यहाँ पर ठीक है मेरे पास 6 स्टूडेंट्स है, व्हाट इफ आई हैव 500 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स एंड 500 स्टूडेंट्स नेम है मेरे पास, तब मुझे ये 500 टाइम्स लिखना है। उससे अच्छा एक काम करना है, ये एक जो लाइन है, वन लाइन का कोड, मैं क्या करता हूँ फंक्शन में लिखता हूँ और उसको कॉल करता हूँ बाय यूजिंग नेम, ठीक है। यस, आई विल शो यू दैट दिस वर्क्स, बट इमेजिन डूइंग दिस फॉर, मैंने जैसे बोला था आपको कि अगर आपके पास 500 स्टूडेंट्स है और needing to change the message letter, you had have to edit in एवरी सिंगल प्लेस, दैट्स मेसी एंड एरर प्रोन। ठीक है, एक बार कोड लिख दिया आपने और ये सिर्फ 500 टाइम्स लिखे और आपको चेंजेस करना है कहीं तो भी कोड में, वेलकम टू द एडवांस पाइथन क्लास, तो आपको एडवांस पाइथन ऐसे 500 टाइम्स लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या करना पड़ेगा हमको, फंक्शन में लिखना है एक लाइन, और फिर बाद में करेंगे हम लोग उसको फंक्शन कॉल। नाउ लेट्स डू द सेम थिंग यूजिंग अ फंक्शन। सो फंक्शन का मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ, सिंपल है। आपको पहला लिखना है कीवर्ड डेफ कीवर्ड। आपको क्या लिखना है, डेफ कीवर्ड, डेफ इज योर कीवर्ड स्पेस फंक्शन का नाम, यू हैव टू राइट फंक्शंस नेम, जो भी है मेरा फंक्शन का नाम, और पैरेंथेसिस फॉलोड बाय यहाँ पर आपका कोलन, जैसे फॉर लूप के अंदर आप लिखे थे, मतलब फॉर लूप होने के बाद इफ का मतलब लाइन एंडिंग में जो भी लिखते थे यहाँ पर लिखना है। और ये एंटर करने के बाद ऑटोमेटिक इंडेंटेशन लेता है 4 स्पेसेस वाला, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट, या जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। देन आफ्टर रिटर्न जो है मैं वो बाद में बताऊंगा, दिस इज सिंपल फंक्शन, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन लिख रहा हूँ डेफ। पहले कंपलसरी आपको डेफ कीवर्ड लिखना ही है, फिर बाद में मुझे डिस्प्ले करना है एक मैसेज, वेलकम टू पाइथन क्लास, ठीक है। तो मेरे फंक्शन का नाम रहेगा कुछ, वेलकम लिख लो, वेलकम अंडरस्कोर वेलकम टू पाइथन, या फिर ऐसे छोटा सा ले लो, विश अंडरस्कोर फंक्शन, ऐसा कुछ लिख लो। और यहाँ पर पैरेंथेसिस में दे रहा हूँ कोलन एंड प्रिंट, PRINT प्रिंट, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि हेलो वेलकम टू द पाइथन क्लास। ये मेरा मतलब छोटा सा मैसेज है, ठीक है। ये ऐसे क्लास लिखते हैं, इसको मैंने रन किया और इसको मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस क्लास के नाम से मुझे क्या करना पड़ेगा, विश WISH विश अंडरस्कोर फन और पैरेंथेसिस, इसको मैं रन कर रहा हूँ, शिफ्ट एंटर, देखो हेलो वेलकम टू द पाइथन क्लास। अब पैरामीटर से मैं पैरामीटर से उसको यूज करूंगा,
ठीक है। फंक्शन में यहाँ पर आपका पैरामीटर्स या फिर विदाउट पैरामीटर्स दोनों भी पॉसिबल है। तो मैं अभी नेक्स्ट फंक्शन जो है सेम विथ पैरामीटर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा डेफ ग्रीट स्टूडेंट, ये मेरा पैरामीटर है नेम। ठीक है, एंड इस पैरामीटर में क्या होगा, जो भी मैं नेम स्क्रैच से लिखेंगे हम लोग, डेफ ग्रीट अंडरस्कोर विश, ग्रीट या ग्रेट स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन बनाया मैंने, ग्रेट स्टूडेंट। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक पैरामीटर लेता हूँ, जो नाम जो मैं पास कर रहा हूँ नाम, वो यहाँ पर आएगा, राइट। एंड प्रिंट के अंदर मैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट यूज करूंगा। यहाँ पर क्या करूंगा मैं, हेलो नेम, मतलब यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर दे रहा हूँ नेम, एंड वेलकम टू द पाइथन क्लास। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर ना प्लेस होल्डर जो मेरा ब्रेसेस है वहां पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर मुझे नेम आना चाहिए। यहाँ पर नेम लिख दिया तो भी चल जाएगा। मैं क्या करता हूँ, डॉट फॉर्मेट, मतलब जनरली नेम लिखा, मतलब इसको अलग करके दोनों स्ट्रिंग के बीच में नेम लिखा तो भी चल जाएगा, बट मैं फॉर्मेट यूज करता हूँ, डॉट फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो चाहिए आपको, जितने आपके ब्रेसेस, जितने प्लेस होल्डर्स है, उतने ही वेरिएबल्स यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर एक ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर नेम ले लिया। अभी देखो, इसको रन किया, बट कुछ आउटपुट आया क्या, नहीं। इसको इनपुट देना पड़ेगा आपको। तो मेरा जो स्टूडेंट नेम है, मैं उसको कैसे कॉल करूंगा, ग्रीट स्टूडेंट को, बाय यूजिंग फंक्शन नेम एंड as many as their that function has parameters। तो यहाँ पर एक पैरामीटर्स है, यहाँ पर एक्चुअल आर्गुमेंट देना है आपको। यहाँ पर आर्गुमेंट क्या देता हूं मैं, स्नेहल। ठीक है, अभी जब भी मैं इसको रन करता हूं तो क्या होगा देखना, ग्रेड स्टूडेंट नाम का मतलब एक फंक्शन ढूंढेगा जिसमें एक पैरामीटर हो, मतलब ये वाला, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर कॉलिंग के टाइम पे जो मैंने यहाँ पर नाम दिया है ना, एक्चुअल नेम इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, एंड फंक्शन डिफाइन करते वक्त जो मैंने दिया है इसको पैरामीटर बोलते हैं। इसको पैरामीटर दोनों सेम मतलब लगते हैं, बट उसके पोजीशन की वजह से मैं इसको आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर है कॉलिंग के टाइम पे आर्ग्यूमेंट है, और यहाँ पर पैरामीटर बोलता हूँ। ठीक है, नाउ वेन एवर आई सर्च दिस फंक्शन विथ वन नेम, सो इट इज नथिंग बट दिस ग्रेट स्टूडेंट। इसमें स्नेहल क्या करेगा, ये कॉल कर रहा है तो नेम में क्या आएगा, स्नेहल, मतलब दिस इज कॉल्ड अ प्लेस होल्डर। ठीक है, यहाँ पर वो हेलो प्लेस होल्डर नेम वेलकम टू नेम आएगा, एंड वेलकम टू द पाइथन क्लास डॉट फॉर्मेट नेम, मतलब यहाँ पर नेम आएगा स्नेहल, राइट। यहाँ पर देखना, हेलो स्नेहल वेलकम टू द पाइथन क्लास। मैं सेम टू सेम अभी इसको क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि हेलो प्रदीप, PRADEEP, राइट। तो हेलो प्रदीप एंड वेलकम टू द पाइथन क्लास। अगर मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स है, मैं फॉर लूप में डाल दूंगा 1000, और उसको बोलूंगा कि मैं मतलब इसको 1000 टाइम्स कॉल करो, वो ऑटोमेटिक कर लेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सिंपल है। एनी डाउट टिल नाउ, ये और वो सेम है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ हेलो वेलकम टू द, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट वाला चेंज किया, एफ फॉर्मेट में, एफ स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ पर नेम लिखते, वेलकम टू द एडवांस, यहाँ पर मैंने लिख दिया एडवांस पाइथन क्लास, और उसको रन किया, उसको कॉल कर रहा हूँ, हेलो रिया वेलकम टू द एडवांस पाइथन क्लास, अमन एडवांस क्लास, यस। ठीक है, वाई फंक्शंस मैटर, यस बोलो, यस यस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ फंक्शन इज रीयूजेबिलिटी। एक बार लिखो और मल्टीपल टाइम्स, जितने टाइम आपको लगता है उतना टाइम आप उसको यूज करते रहो। गॉट इट। देन ऑर्गेनाइज कोड ब्रेक्स अ बिग प्रॉब्लम इनटू a small, or you have 1000 lines of code, then this is what a big problem, right? Then you can write a chunks, you can write a code into 100 lines of code, and you can call it again, you can write different 100 lines of code. Breaking this 1000 lines of code, you can write in function, so, or we can say big program into small manageable pieces, avoids repetition, easy to debug। 1000 में लाइंस ऑफ कोड में है, तो कहाँ पर डिबग करते, कहाँ पर एरर आ रहा है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
rather than आप 10 lines या 50 lines 100 lines का कोड है, right? Okay, remember this. The main advantage of function is code reusability. In other programming languages, functions may be called methods, procedures, or subroutines, but the idea is same everywhere. It is same. So we will have some built-in functions in Python. Python comes with many ready-made functions. आपको कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है Python में. Built-in functions बहुत सारे हैं that you can use immediately. You don't need to create them yourself. These are called built-in functions, right? Think of them like pre-installed apps on new phone. You did not build them, but they are ready to use. Some common built-in functions you may have already discussed: print, len function, type function, max function, min function, sum function, abs function. Input क्या करता है? Print, display output on screen. Len function counts the number of items in string, list, set, जो भी है. Type, it tells you data type of that value. Max finds the largest value. Min finds the smallest value. Sum adds up all numbers in list or set, something like. Abs gives absolute positive value of a number. Input takes input from the user. So these are all built-in functions. तो यहाँ पर देखो, एक लिस्ट लिया है मैंने और ये लिस्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ. लेन, मैक्स, मीन, सम, एब्सोल्यूट, टाइप, इसको रन कर रहा हूँ मैं. ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. अ नोट हियर, पाइथन हैज मेनी मोर बिल्ट इन फंक्शंस लाइक सॉर्टेड, enumerate, directory बोलते हैं हम लोग उसको, is instance, and more. We are keeping this list short here so we can focus on today's main topic only, but they are worth exploring in dedicated Python built-in functions session. So the rest of today's class focus on more powerful idea of writing your own functions. Okay, so user defined functions in simple words. While built-in functions come ready-made, and sometimes you need a function that does something specific to your problem. Program doesn't have a built-in function for calculate my restaurant bill or check if a student passed or failed. So you define your own function. This is called user defined function. Python support two types: built-in function and user defined. Defining a function using def. Def is compulsory. You have to write that keyword. This is keyword. To create your own function in Python, we use def keyword, short for define, right? ये पहले आपको क्या लिखना है? def लिखना है. फिर बाद में फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस और कोलन, ये कंपलसरी. फिर बाद में आप ग्रुप ऑफ यहाँ पर लाइन स्टेटमेंट कंपलसरी है. सिंटेक्स, डेफ इज योर कीवर्ड. ठीक है, ये क्या है? आपका कीवर्ड है. देन यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये, हाँ, यस, डेफ इज योर कीवर्ड. एंड पहले कीवर्ड लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? फंक्शन का नाम लिखेंगे. क्या लिखेंगे? फंक्शन का नाम. देन आफ्टर वी हैव पैरेंथेसिस. इनसाइड पैरेंथेसिस पैरामीटर्स. मैंने बोला ना, पैरामीटर्स और आर्गुमेंट दो अलग अलग, मतलब सेम ही है, बट जब फंक्शन डिफाइन करते तब पैरामीटर्स बोलते हैं, एंड जब फंक्शन को कॉल करते हैं तब आर्गुमेंट्स बोलते हैं. सो बॉडी ऑफ द फंक्शन और कोलन. यहाँ पर ये चार चीजें आपको कंपलसरी ध्यान में रखना है. क्या क्या रखना है ध्यान में? डेफ, यस, यू हैव टू राइट डेफ कीवर्ड. फंक्शन का नाम लिखना है. पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स होंगे तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो. और कोलन. देन स्टेटमेंट्स, ये कंपलसरी देना है. सो डेफ मार्क्स दैट इट इज द स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शन. Right? Function name. Choose a clear, meaningful name, just like naming a variable. मतलब नाम ना अच्छे सा ढंग का होना चाहिए. कोई फंक्शन अगर आप बना रहे हो या लिख रहे हो, सो उस फंक्शन का नाम प्रॉपर होना चाहिए. रेस्टोरेंट बिल है तो उसी के रिलेटेड चाहिए. ठीक है, हम लोग रेस्टोरेंट बिल का नाम रेस्टोरेंट ले लो. रेस्टोरेंट अंडरस्कोर बिल नाम का फंक्शन. यहाँ पर डेफ, मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. यहाँ पर पैरामीटर्स देना है तो दो या छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. इट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस लॉजिक. तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ लाइन, क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ऐसा नहीं लिख सकते हो डेफ एक्स और यहाँ पर कुछ ब्लॉक ऑफ कोड, ये नहीं लिखना है. सो पैरेंथेसिस में होल्ड पैरामीटर्स इनपुट्स और स्टे एम्प्टी. मीनिंग मतलब it depends upon your business logic. A colon starts the function's body. The indented lines below def are function's body, the actual task.
यहाँ पर से हेलो, देखो यहाँ पर मुझे बता सकते हो क्या इसमें मतलब डेफ क्या है हमारा, स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शन, यहाँ से फंक्शन स्टार्ट होता है। से हेलो क्या है आपका, यस कोई बता सकता है से हेलो क्या है, से अंडरस्कोर हेलो क्या है, फंक्शन का नाम है, पैरेंथेसिस विदाउट पैरामीटर्स या विद पैरामीटर्स भी कोलन। यहां से आप ना सीधा सीधा ना एंटर हिट करोगे ना, वो 4 स्पेसेस ऑटोमेटिक ले लेगा यहाँ से, और मैं प्रिंट बोल रहा हूँ हेलो वेलकम टू द पाइथन फंक्शंस, वेलकम टू द पाइथन फंक्शंस। सिंपल है। अभी इसको कॉल करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, से फंक्शन का नाम से अंडरस्कोर हेलो, इसको मैं रन करता हूँ। देखो हेलो वेलकम टू पाइथन फंक्शंस। नोटिस रनिंग द सेल above does not print anything yet. We have only defined the machine, we haven't used it yet. That comes next. मतलब मैंने यहाँ पर इसको मैंने डिफाइन कर दिया, बट कॉल किया है मैंने, अभी यहाँ पर किया है। हाउ टू कॉल ए फंक्शन, जस्ट से हेलो, से हेलो, से हेलो, जितने बार आप से हेलो उसको बोलोगे उतने बार ये रन होगा। In simple words, defining a function is like installing a machine. Calling a machine is like actually pressing its start button to use it. To call, use a function, function name, whatever it may be. Simply write its name followed by parenthesis. Remember this, a function only runs when you call it. Until and unless it won't run. Defining it just teaches Python the recipe, calling it actually cooks the dish, right? Parameter and argument अभी बताया था मैंने। These two words are often confused, but the difference is simple. Term parameter and argument. Parameter, the variable name written inside the function definition. Example क्या, def greet name, name is the parameter. Argument, the actual value you pass in when calling the function. Greet रिया, मैंने जैसे snail बोला था, snail is argument। तो यहाँ पर देखो def greet name print hello name, मतलब क्या है, रिया अमन। तो नेम क्या है, नेम इज योर पैरामीटर, रिया अमन, अमन आर आर्ग्यूमेंट। इसको रन करेंगे हम लोग। फंक्शन विथ नो पैरामीटर्स, यहाँ पर मैंने कुछ पैरामीटर्स दिया ही नहीं है। डेफ शो वेलकम मैसेज, यहाँ पर मतलब कोई पैरामीटर है, जो भी मेरे कोड रहेगा वो फंक्शन के इनसाइड का रहेगा। प्रिंट इक्वल टू *40, मतलब ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग है इक्वल टू *40, मतलब ये ऑपरेटर, स्टार ऑपरेटर क्या करता है, एक स्ट्रिंग और एक नंबर है तो उसको मल्टीपल टाइम्स, जितने भी टाइम्स आप दे रहे हो उतने टाइम्स वो रिपीट करेगा। वेलकम टू द पाइथन फंक्शंस क्लास, और ये भी 40 टाइम्स हो इक्वल टू, नीचे और ऊपर 5, इसको ऐसे ये करेगा, राइट। फंक्शन विथ पैरामीटर्स क्या है कि मोस्ट यूजफुल फंक्शंस टेक सम इनपुट सो दे कैन वर्क विथ डिफरेंट वैल्यूज ईच टाइम, जस्ट लाइक अ कॉफी मशीन कैन मेक टी और कॉफी or green tea or anything it can perform, it depends upon users input। तो मैं क्या चाहता हूं कि 2 नंबर लेना चाहिए, हर बार मैं 2 नंबर अलग दूंगा और उसका एडिशन करना चाहिए। तो मैं क्या करूं, मैं एक ऐड नाम का फंक्शन लिखता हूं। आई वॉन्ट टू राइट ऐड नंबर्स, इट विल टेक 2 A and B पैरामीटर्स एंड ये क्या प्रिंट करना चाहिए, A+B प्रिंट करना चाहिए। मैं सिंपल एकदम छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या लिखना चाहिए बताओ, फर्स्ट क्या लिखना चाहिए फंक्शन जब आप लिख रहे हो, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, एनीवन, ओनली डेफ कीवर्ड, बस इतना ही। फिर बाद में फंक्शन का नाम, जो आप जो फंक्शन कर रहे हो, एडिशन या ऐड या जो भी नाम ना प्रॉपर होना चाहिए, एडिशन। और पैरेंथेसिस के अंदर मैं ले रहा हूँ पैरामीटर्स, मतलब कलेक्टर्स A, B, एंड यहाँ पर इसके बाद पैरेंथेसिस के बाद क्या कंपलसरी देना है आपको, कोलन, कोलन इज कंपलसरी, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं प्रिंट कर रहा हूँ, रिटर्न बाद में करता हूँ। प्रिंट क्या करना है मुझे, A+B, सिर्फ डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसको मैंने रन किया एंड यहाँ पर मैं उसको कॉल करना है मुझे। हाउ टू कॉल द फंक्शन, यस बोलो, नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन एडिशन। एंड अच्छा, जब भी आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर, हाँ हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर, 2 पैरामीटर्स, correct, so we have to pass 2 arguments, so I, yes, 5 comma 10, yeah, 2 arguments I'm passing। so यहाँ पर इंटरनली क्या होगा, इंटरनली ये होगा कि ये 5 किस में जाएगा, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में जाए, पैरामीटर में जाएगा, और सेकंड आर्ग्यूमेंट सेकंड पैरामीटर में जाएगा। मींस ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, आ रहा है समझ में आपको,
This is first and this is first. 5 is first in argument, A is first in parameter, B is first argument, 10 is first argument, B is second parameter. तो उसके हिसाब से रेस्पेक्टिव नंबर्स ये वहां पर स्टोर होंगे. नाउ आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन with values 5 comma 10, so it is printing 15. So I want to write a function to subtract two numbers. Yes, बताओ मुझे एक subtraction वाला मुझे function चाहिए. पहले क्या लिखना है? पहले लिखना कि def subtraction, हाँ, a comma b parenthesis and colon and hit enter. Automatically it will take four spaces means one indentation. Here what I will do, print a minus b. It's very simple. राइट मैंने इसको रन किया. रन करने से आ रहा है क्या हमारा कुछ? यस, नहीं आ रहा है. सो वी हैव टू कॉल द फंक्शन विथ द एग्जैक्ट स्पेलिंग. हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक रहे तो नहीं आएगा. मैं अभी ये कॉपी कर रहा हूँ, नेम ऑफ द फंक्शन, एंड आई एम पासिंग हियर आर्ग्यूमेंट्स, टू आर्ग्यूमेंट्स माइनस, पॉजिटिव लेते हैं चलो, 10,5 या फिर कोई नंबर दूसरा ले लो, आपकी मर्जी. सो ये क्या करेगा? 10 A में जाएगा, 5 B में जाएगा, राइट. सो 10 - 5 is 5. Okay, so yes, yeah, we can write functions for addition, subtraction. जो भी आपको बिजनेस लॉजिक है वो आप खुद लिख सकते हो. यहाँ पर मैंने ऐड नंबर्स का एक लॉजिक लिखा और उसको कॉल किया. यस, हो गया. ये रिटर्न क्या करता है? ये एक्चुअली आपको वो वैल्यूज देता है. एडिशन किया है, यहाँ पर मैंने प्रिंट किया है, यहाँ पर प्रिंट किया तो ये यहीं पे छोड़ देगा एडिशन. मुझे वो फंक्शन जहां पर कॉल किया है वहां पर चाहिए 15, तो रिटर्न यूज करना है. आप रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न इज कीवर्ड, right? It is a keyword. Def is keyword, def is keyword, return is also keyword. In simple words, so far our function just displays something using print, but often we want a function to send a value back, so we can use it later in our program. Like a vending machine gives you back an actual snack, not just a message saying snacks dispensed. The return statement sends a value back from function to wherever it was called. मतलब क्या है कि देखो, मैं एक फंक्शन लिखता हूं एडिशन वाला, राइट. डेफ एड टू नंबर्स, राइट. यहाँ पर मैं ले रहा हूँ x कॉमा y, ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू रिटर्न द एडिशन ऑफ दीज टू वैल्यूज. सो मुझे क्या लिखना है? रिटर्न लिखना है, कीवर्ड x प्लस y, सिंपल x प्लस वाई, राइट. इसको मैं कॉल कर रहा हूं बाय यूजिंग फंक्शन नेम एड, और मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ 25,35. अच्छा, मैं इसको रन करता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट किया तो 60. एक्चुअली मैंने कलेक्ट किया क्या 60? नहीं किया है. रिटर्न मेरा एक्चुअली 60 ना यहां से ट्रैवल करके यहां तक आ गया है, उसको मैं कलेक्ट करना है मुझे. तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल में मैं उसको कलेक्ट करता हूँ. वेरिएबल मतलब SUMM, सम मत लिखना, SUMM लिखना. जस्ट अ मिनट गाइस, आई एम कलेक्टिंग इन दिस वेरिएबल. नाउ माय एडिशन x प्लस y came outside the function wherever I called. So here add and I'm collecting into some variable sum. So बाद में इस sum को मैं यूज कर सकता हूँ बाहर. print print SUMM. अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 60 आ गया है. मतलब मैंने एडिशन कहां पर किया? इनसाइड अ फंक्शन. तो रिटर्न का काम क्या है कि ये जो x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो फंक्शन से बाहर आकर मुझे, मैंने जहां पर कॉल किया है वहां पर आकर मुझे वो दे रहा है. सो आई एम कलेक्टिंग दैट वैल्यू इनटू सम वेरिएबल एंड प्रिंटिंग. दिस इज द पावर ऑफ रिटर्न. ओके, तो यहाँ पर देखो, एड नंबर्स a कॉमा b, रिजल्ट इक्वल्स टू a प्लस b. यहाँ पर एक वेरिएबल लिया a प्लस बी, उसमें स्टोर किया रिटर्न रिजल्ट. मैंने यहाँ पर रिटर्न डायरेक्ट x प्लस वाई कर दिया. यहाँ पर थोड़ा सा मतलब चलो मिर्ची मसाला थोड़ा डालकर इसको मैंने 2 लाइन का कोड बना दिया. नाउ वी कैन स्टोर दी रिटर्न वैल्यू. अगर आपने देखा, यहाँ पर इसको रन कर रहा हूं मैं फंक्शन को, टोटल में मैं उसको स्टोर कर रहा हूँ. कहाँ पर? ऐड नंबर्स आर्ग्यूमेंट्स 10,5 और टोटल को मैं बाहर प्रिंट कर रहा हूँ. यस और नो? टोटल इज 15, डबल द टोटल इज 30, जो भी रहेगा. ओके, सो आई एम स्टॉपिंग हियर and rest of the topics will cover in next session.